Hello students, so today's session we are going to start with business studies and business studies में जो है we are going to start with a very important chapter that is marketing management and from board exam point of view this chapter is quite you can say scoring chapter and moreover apart from this like you can say it's a bit lengthy chapter also. So very quickly without wasting the time let's begin with the chapter. Let me clear out few other things कि इस chapter में हम कौन कौन से topic पढ़ने वाले हैं and apart from that what other some basic things like you know. So marketing management क्या क्या topics cover up करने वाले हैं. There are two important topic in this chapter. Apart from that two topics there are few small little topics you can consider like not very important but still. So दो important topics कौन कौन से हैं. एक तो पहला रहेगा आपका marketing philosophies and today we are going to cover this topic and apart from that elements of market mix. So these are the two important topic of this chapter. Today we are going to cover this topic, marketing philosophies. Marketing mix, actually this is marketing mix. So basically elements of marketing mix, इसमें से जो है बहुत सारे questions निकल के आते हैं, case studies basically and apart from that few of the question that comes from this topic also, that is marketing philosophy. So आज जो हम ये topic cover up करेंगे, in the next class हम ये topic शुरू करेंगे, cover नहीं हो पाएगा सर. क्यों? दिस इज वेरी लेंथी टॉपिक. मार्केटिंग मिक्स में भी जो है देर आर 4 सब टॉपिक्स. उस सब टॉपिक्स के अंदर भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं. सो लाइक इन फ्यू पार्ट्स वी विल ट्राई टू कवर अप each of the subtopics. So today we are going to start with marketing philosophies. So before I commence with marketing philosophies, one of the chapter in business studies, let me clear out what is marketing. See, in a very simple basic way, basic sense में अगर हम देखें तो marketing means doing all those efforts, doing all those activities which satisfies the customer. वो सारे काम आप करते हो करने के लिए so that your customer is satisfied with your product, with your services or whatever things you are providing to your customer. Basically a product and a services वही चीजें हम जो है customer को देते हैं. So to do that whatever effort you are doing, all those things are considered under marketing management. Under marketing management. So marketing management मतलब क्या हो गया simple sense में सर? Simple sense में marketing management means doing all those activities to satisfy the needs of the customer. तो like basic concept तो clear है कि marketing management क्या होता है. जो भी मैं sales का promotion कर रहा हूं, कवर चूज कर रहा हूं कि कौन से बॉक्स के अंदर मेरा प्रोडक्ट जाएगा, लेबलिंग कैसी रहेगी, ब्रांडिंग कैसा रहेगा, व्हाट वुड बी द नेम ऑफ माय प्रोडक्ट, हाउ आई एम गोइंग टू सेल दैट प्रोडक्ट इनटू द मार्केट, हाउ आई एम गोइंग टू कन्विंस द कस्टमर टू टेक माय प्रोडक्ट. ऑल दीज एक्टिविटीज आर अंडर मार्केटिंग आर कवर्ड अंडर मार्केटिंग मैनेजमेंट. सर व्हाट आर मार्केटिंग फिलॉसफीज? टुडेज टॉपिक. सी रिगार्डिंग मार्केटिंग फिलॉसफीज, philosophy you can say it is a kind of concept, it is a kind of theory which every firm follows. sir मतलब बोल सकते हो कि every firm have certain goal, have certain standards, have certain criterias on which the firm continuously move. एक क्राइटेरिया डिसाइड कर लेते हैं कि हम ये चीज ही करने वाले और उसी हिसाब से हम जाएंगे. सर जैसे एग्जांपल, कंसिडरिंग एग्जांपल लाइक यू कैन कंसिडर एप्पल कंपनी. एप्पल कंपनी हैव सर्टेन फिलॉसफी, हैव सर्टेन आइडियोलॉजी कि जो भी प्रोडक्ट हम बनाएंगे इट विल बी अ क्लासी प्रोडक्ट, इट विल बी अ कॉस्टली प्रोडक्ट. माय प्रोडक्ट विल टारगेट ओनली अ सर्टेन स्पेसिफिक कस्टमर, अ सर्टेन क्लास ऑफ कस्टमर्स. Another example you can consider like automobile companies such as Mercedes-Benz. Apart from that, Jaguar you can consider. These companies have ideology, as I was talking just now as Apple. There are certain companies which have different ideology, which have different philosophies. So basically philosophy means certain concept through which a firm goes.
बहुत सारी फर्म का कॉन्सेप्ट ये होता है कि कितने ज्यादा प्रोडक्ट मार्केट में हम सेल कर दें, तो वो अलग कॉन्सेप्ट हो गया एप्पल से तो बिल्कुल, बिकॉज एप्पल का बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट नहीं होता कि कितना ज्यादा सेल कर दूंगा, ये कॉन्सेप्ट होता है कि कितने क्लासी प्रोडक्ट्स मार्केट में हम लॉन्च करें. सो लेट्स कमेंस विथ मार्केटिंग फिलॉसफी. सो सर कितनी फिलॉसफीज है? देयर आर 5 to 6 फिलॉसफीज जो आप कवर अप करने वाले हो. द फर्स्ट फिलॉसफी ऑफ मार्केटिंग concept, or you can say marketing philosophy, the first one is your production concept. Sir, what is production concept? क्या है ये philosophy? See, a very simple sense. All those firm which have a philosophy or concept, all those firm जो ये concept follow करते हैं, production concept, दे ट्राई टू मेक श्योर कि कितना ज्यादा मार्केट में प्रोडक्ट को जो है मैन्युफैक्चर करके सेल कर दिया जाए. कंपनीज विच फॉलो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, दे डू प्रोडक्शन इन अ मास मैनर, और यू कैन से दे ट्राई टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट इन अ ह्यूज वॉल्यूम. सर व्हाई दे डू दिस? बिकॉज जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, दिस विल अल्टीमेटली reduce the कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट. एवरेज कॉस्ट हमने 11th में किया था इकोनॉमिक्स में, एंड वी केम टू नो दैट जितना ज्यादा आउटपुट बढ़ रहा था हमारा 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, जितना ज्यादा आउटपुट बढ़ रहा था हमारा एवरेज कॉस्ट जो है कम होते जा रहा था. सो बेसिकली दोस फर्म फॉलोइंग प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट वेयर दे फोकस ऑन मास प्रोडक्शन, कि कितना ज्यादा जो है ना हम प्रोडक्शन कर ले मार्केट में प्रोड्यूस करके सेल कर दें. सो मास प्रोडक्शन विल अल्टीमेटली रिजल्ट इन हायर प्रॉफिट. सर व्हाई? बिकॉज मास प्रोडक्शन विल एक्चुअली रिजल्ट इन लोअर कॉस्ट, एंड लोअर कॉस्ट की वजह से मार्केट में सेल करना मेरे लिए इजी हो जाएगा. एंड मोर ओवर कस्टमर्स बेसिकली दे प्रिफर बाइंग दोज प्रोडक्ट्स विच आर वाइडली अवेलेबल इन टू द मार्केट. मैं मार्केट में जा रहा हूं कार खरीदने, फॉर श्योर मैं वो कार ज्यादा प्रिफर करूंगा विच इज वाइडली अवेलेबल rather than those cars which are not available in a like you can say in a huge quantity, और you can say जो ज्यादा कार दिख नहीं रही मार्केट में, वो कार अगर मैं खरीदूंगा तो मेरे दिमाग में हमेशा डाउट रहेगा कि यार मे बी लेटर ऑन मेरे को इसको सर्विस मिले कि नहीं मिले, बिकॉज बहुत ज्यादा मार्केट में है नहीं, तो इसके जो सर्विस सेंटर भी कम होंगे. जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू. सो कंपनी सिंपल कॉन्सेप्ट याद क्या रखना है कि प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट मतलब मास प्रोडक्शन करेंगे. सर क्यों? हायर प्रॉफिट के लिए. बिकॉज मास प्रोडक्शन से जो है अल्टीमेटली होगा क्या, द कॉस्ट, जो कॉस्ट है फर्म का, द कॉस्ट ऑफ द फर्म और यू कैन से कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन विल डिक्रीज, एंड डिक्रीज इन कॉस्ट विल ऑलवेज रिजल्ट इनटू हायर प्रॉफिट. सो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट इन अ सिंपल सेंस याद कैसे रखना है? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट मीन सच कॉन्सेप्ट विच बेसिकली फोकसेस ऑन मास प्रोडक्शन, एंड दिस ultimately results into higher profit because the cost of the product will decrease. Example sir, example you can consider Xiaomi. Xiaomi का जो concept है वो production concept है. सर क्यों? Because what Xiaomi does, एक बार मशीन शुरू किया तो they try to make sure कि कितना ज्यादा huge volume में जो हम production कर लें, and that is the reason that these companies they sell the product at a cheaper cost compared to other companies because इनका concept ही production concept है. So Xiaomi you can consider one of the company which follows the production concept. Just for an example you can remember the name of the firm. So and apart from that production concept will like since I'm applying production concept, so variety of products will be available into the market for the customers to purchase. So this will make easy for me to capture the market. Moving further to the next concept that is product concept. देखो ऊपर और नीचे वाला जो है ना ऑलमोस्ट सेम साउंड करता है, सो समटाइम्स स्टूडेंट्स टेंड टू गेट कंफ्यूज. तो आपको जो है कंफ्यूज नहीं रहना. सिंपल में प्रोडक्शन मतलब मास प्रोडक्शन याद रखो, नीचे के बाकी आपको अंदर के जितने भी कंटेंट है वो याद रहेगा. सो नेक्स्ट प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट. अभी प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या? सी दोस फर्म फॉलोइंग प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट they focus not on production but they focus on quality of product, कि कितने क्लासी हाई क्लास हाई स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट्स जो है मार्केट में हम लॉन्च कर दें. सो बेसिकली
product concept, or you can say those firm following product concept, they don't focus on mass production, but they focus on quality of product. They focus on that how much higher standard products I can sell. Doesn't matter what the cost will be, but my aim is to sell the product in the best manner, to sell the product in you can say to sell the product which is the best in class, which is the best in market. There are many airlines who follow this concept, or you can say, taking best example of this would be Apple. Apple Incorporation, they, you can like looking at their strategy, the way they try to sell their product, और जो pricing वो रखते हैं, and moreover the kind of product they sell into the market. From that we can assume, we can consider that कि Apple कंपनी इज सच विच फॉलोज द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, बिकॉज वहां पे प्रोडक्ट की जो है बहुत ज्यादा जो है हाई क्वालिटी होती है, एंड मोर ओवर प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट आर दे फोकस ऑन क्वालिटी प्रोडक्ट, एंड यू कैन से द अवेलेबल प्रोडक्ट इनटू द मार्केट इज लिमिटेड, बहुत ज्यादा नहीं होगा, लिमिटेड होगा, बट इट विल बी ऑफ सुपीरियर क्वालिटी. सो आई गेस प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपके लिए, बहुत सिंपल है. एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं रिगार्डिंग दीज 2 पॉइंट्स. सो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या है सर? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट मींस दोस कंपनीज following production concept focuses on mass production, which ultimately results into lower cost of the product, and ultimately this will increase the profit. Production concept companies also produces variety of products which makes the customer easy to purchase the product because they have n number of choices. So production concept क्या है? क्लियर है. Product concept means sir those company which follow product concept, they focuses on quality. They have limited product but their quality is superior. Apple company is one of the example of product concept. So दोनों concept I hope आपको याद रहेगा. It is very easy, not very tough. देखते हैं next, that is third हमारा concept है selling concept. Struggling companies का मोस्ट फेवरेट कॉन्सेप्ट. सर क्यों? बिकॉज स्ट्रगलिंग है तो सेल करेंगे तो ही तो अर्निंग होगा. सो सेलिंग कॉन्सेप्ट सर क्या है? सेलिंग कॉन्सेप्ट मीन्स बाय हुक और क्रुक सेल द प्रोडक्ट इनटू द मार्केट. इन दिस केस यू डोंट लुक कि मार्केट में डिमांड क्या है, यू डोंट गो टूवर्ड्स द नीड ऑफ द कस्टमर, यू जस्ट try to make sure that by any effort you just try to sell the product into the market. So in order to achieve this concept company क्या करेगी? कंपनी जो है ना, you can consider aggressive sales promotion करेगी. सर क्यों? बिकॉज बहुत ज्यादा प्रमोशन करूंगा तभी तो कस्टमर को पता चलेगा और तभी तो कस्टमर मेरा प्रोडक्ट खरीदेगा. सो कंपनी फॉलोइंग सेलिंग कॉन्सेप्ट वो क्या करते हैं, उनका फोकस एक ही चीज पे होता है कि कितना ज्यादा प्रोडक्ट को जो है मार्केट में सेल कर दो. एंड बाय डूइंग एग्रेसिव सेल्स प्रमोशन दे आर इन अ सिचुएशन वेयर कस्टमर टेंड टू बाय द प्रोडक्ट इवन इफ दे डोंट नीड. एग्जाम्पल वी कैन टेक सर्टेन थिंग्स. मूवीज दो भी एक प्रोडक्ट है किसी कंपनी का. देर आर सर्टेन मूवीज इतना ज्यादा एग्रेसिव सेल, इतना ज्यादा जो एग्रेसिव उनका प्रमोशन किया जाएगा दैट मेनी पीपल टेंड टू वॉच दैट मूवी. आई विल गिव यू एग्जांपल एवेंजर. आई वाज नेवर इंटरेस्टेड इन दैट मूवी, बट इतना ज्यादा एडवर्टीजमेंट एवरीवेयर, पीपल वर क्रेजी अबाउट दैट, एवरीवेयर पीपल वर टॉकिंग अबाउट दैट. कोई भी सोशल मीडिया खोलो एवेंजर्स का जरूर जो है वहां पे प्रमोशन दिखता था बाय एनी मींस. सो इवन आई थॉट क्योंकि दिस ऐसा क्या मूवी, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट दैट, एवरीवेयर सच एडवर्टीजमेंट आई कैन सी. सो इवन आई वेंट टू वॉच दैट मूवी. सो यहाँ पे कंपनी ने किया क्या? कंपनी ने प्रोडक्ट सेल कर दिया, बंदे को नहीं चाहिए था फिर भी. आई वेंट एंड आई सॉ दैट मूवी एंड मेनी पीपल लाइक मी वुड हैव वेंट एंड लाइक दे हैव सीन दैट मूवी. एंड नॉट ओनली टिल मूवी, देयर आर मेनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो मार्केट में सेल हो जाते हैं इवन दो कस्टमर डोंट नीड दैट, बिकॉज इतना ज्यादा एग्रेसिव सेल प्रमोशन किया जाता है उसके पीछे. एंड एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल यू कैन टेक, दिस इज व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम पीपल. डीमार्ट है ना, अगर आप डीमार्ट जाओगे या आप गए होगे तो यू माइट हैव सीन यू गो टू टेक certain amount of product but you end up taking more products. क्यों?
बिकॉज सेलिंग एग्रेसिव सेल्स प्रमोशन किया जाता है, ऐसी प्राइसिंग रखी जाती है, the way they display their products and everything is done in such a manner that customer tends to buy more and more even if they don't need the product. So selling concept basically they focuses on how much sale can be done into the market, and moreover they do not focus on requirement. मार्केट में जो है क्या रिक्वायरमेंट हम उस पर नहीं फोकस करेंगे, बट आई विल फोकस मोर ऑन दैट हाउ मच और विद इन हाउ मच लेस टाइम आई एम इन अ सिचुएशन वेयर आई कैन sell the product into the market. But one thing what firm need to keep in mind while following this concept, that by manipulating the customer you won't be able to sell the product for a very long time. You might fool the customer once, but this will ultimately lower down your reputation and you will end up losing your customers. So selling concept, this works, but if it is done in a fairly manner. Otherwise the company may end up losing their customers just by doing aggressive sales. You cannot be into the market for a very long time. So I hope you are clear with the selling concept. क्या है concept sir? Aggressive sale promotion. Company following selling concept tries to sell the product into the market as much as possible, and within a less period of time they do aggressive sales promotion. Apart from that, they don't focus on the requirement of the customer. By hook or crook, they try to sell the product as much as possible. So ये तो था हमारा third concept. Coming back, fourth concept, very important, and this is some which many of the firm they try to follow in order to survive into the market. वो आपका है marketing concept. Sir, ये क्या है marketing concept? See, a marketing concept basically you can say that those firm following marketing concept, what they focus on the नीड ऑफ द कस्टमर. तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको इसमें याद रखना है कि फर्म फॉलोइंग मार्केटिंग कॉन्सेप्ट वो जो है कस्टमर के नीड पे जो है दे फोकस ऑन द नीड ऑफ द कस्टमर की क्या नीड है उसके हिसाब से जो है वी आर गोइंग टू मेक द प्रोडक्ट, एंड ऑन दैट बेसिस वी विल ट्राई टू सेल द प्रोडक्ट इनटू द मार्केट. सो एक एग्जांपल देता हूं. अर्लियर लाइक यू कैन से 5 to 6 years बैक आई रेड इन वन ऑफ द मैगजीन LG कंपनी व्हाट दे डिड, उनको जो है कंटिन्यूअस जो है सेल फिगर डाउन हो रहा था. तो दे वांटेड टू मेक श्योर दैट कितना ज्यादा जो है हम रेफ्रिजरेटर सेल कर दें, एंड कंपनी स्टार्टेड फॉलोइंग मार्केटिंग कॉन्सेप्ट. सो इन अ पर्टिकुलर एरिया दे स्टार्टेड सेलिंग देयर person from the company. You can consider like a kind of investigation for sales, और यू कैन सी इन्वेस्टिगेशन फॉर मार्केटिंग पर्पस. सो सेल्समैन क्या करते थे, हर घर पे जाते थे एंड दे यूज्ड टू आस्क कि इफ यू हैव अ रेफ्रिजरेटर एंड इफ यू आर गिवन अ चॉइस तो व्हाट काइंड ऑफ रेफ्रिजरेटर वुड यू वांट. तो मेनी ऑफ देम रिप्लाइड कि ऐसा रेफ्रिजरेटर होना चाहिए जिसमें जो है एनी टाइम फ्रीजर को भी जो है हम नॉर्मल रेफ्रिजरेटर में कन्वर्ट कर दें, पूरे रेफ्रिजरेटर को जो है हम फ्रीजर में कन्वर्ट कर दे. एंड मेनी ऑफ देम रिप्लाइड दैट वी नीड सच रेफ्रिजरेटर के अगर दोनों हाथ में सामान हो, स्टिल विद बाय पुशिंग अवर लेग वी कैन ओपन द डोर. सो व्हाट कंपनी डिड, कंपनी ने जो है कस्टमर्स की नीड को समझा और उस नीड के हिसाब से जो है क्या किया उन्होंने, दे स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग सच रेफ्रिजरेटर जो कि एक ही बार में जो है पूरा या तो रेफ्रिजरेटर में कन्वर्ट हो जाए या तो पूरा जो है फ्रीजर में कन्वर्ट हो जाए आइस को जो है कूल करने के लिए. उस पर नहीं जाएंगे. सो बेसिकली मार्केटिंग कॉन्सेप्ट यहां पे हमने क्या देखा कि एलजी कंपनी दे ट्राई टू फर्स्ट नो कि कस्टमर की नीड क्या है. कस्टमर की नीड यह है कि कितना अच्छा जो है हमको रेफ्रिजरेटर किस फीचर का चाहिए, और उसी हिसाब से उन्होंने बनाना शुरू किया. अभी तो जो है मेनी ऑफ द फर्म दे प्रोड्यूसेस द सेम काइंड ऑफ रेफ्रिजरेटर व्हाट एलजी स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग एट दैट टाइम. Apart from that, many firm, like example I'm giving you of marketing management, firm they came to know that customers are more focused on having a cell phone with the best camera. तो कंपनी ने क्या किया, सारी चीजों से अटेंशन हटा के बेस्ट कैमरा देना शुरू कर दिया. So what you are trying to do here, you are trying to sell the product on the basis of the need of the customer, कि कस्टमर की नीड क्या है और नीड के हिसाब से जो है I'll try to sell the product to the customer. So this is like you can say by doing marketing, or you can say by doing research into the market, you come to know need of the market and you try to make that product.
अभी मार्केटिंग में जो है देयर आर सर्टेन पिलर्स विच यू नीड टू रिमेंबर. सो सर्टेन पिलर्स मींस यू कैन से देयर आर सर्टेन पॉइंट्स which you have to first keep in mind and then you have to start with this concept. Sir, कौन सा? पहला तो जो है you have to find the customer, or you can say you have to target the customer. आपको पहले ढूंढना पड़ेगा कि किस कैटेगरी के कस्टमर को आप हिट करना चाहते हो प्रोडक्ट के लिए. मतलब इट माइट बी टीनेजर, आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट बना रहे हो जो टीनेजर के काम आए, और इट माइट बी लाइक यू आर मेकिंग सच प्रोडक्ट जो कि किसी छोटे बच्चे के काम आए, किंडर जॉय हो गया, and many different baby products we have into the market. You might be coming up with a product which is important for or you can say where you are trying to sell the product to a woman. तो सबसे important है कि जो है you have to target the customer, and after targeting the customer, the next important thing what you do is you have to make sure that like targeting customer, you can say customer identification. Next thing you do is to find the need of the customer. Need of customer. Sir, need of the customer means what customer need? Suppose targeting, or you can say identification of the customer. Here you came to know that taking example that आपने टारगेट किया किड्स को, या और यू कैन से टोडलर्स को. सर टोडलर्स मतलब छोटे बच्चे जो होते हैं ना, चलो वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ किड्स और टोडलर, वॉट एवर यू कैन कंसिडर. सो आपने किड्स को टारगेट किया. अभी नीड ऑफ द कस्टमर क्या नीड है आपको पता चलेगा. ओके, इट इज लाइक वेरी इजी इन द मार्केट कि हम मार्केट में जो है किसी टाइप का जो है चॉकलेट जो है मार्केट में आप बोलोगे जो है कैडबरी और एनीथिंग मार्केट में हमको सेल करना है. सो आपका जो है नीड ऑफ द कस्टमर, व्हाट इज द नीड ऑफ द कस्टमर? चॉकलेट इज द नीड ऑफ द कस्टमर, वॉट एवर प्रोडक्ट, वी आर जस्ट ट्राइंग टू टेक वन ऑफ द एग्जांपल. और फिर क्या करते हो आप? द नेक्स्ट प्रोसेस यू डू इज टू डेवलप, उस प्रोडक्ट को डेवलप करना. डेवलप करने के बाद जो है क्या करते हैं, यू आर ट्राइंग टू सेटिस्फाई द कस्टमर विथ योर प्रोडक्ट, satisfaction, and all this is done keeping in mind what? Profit. सर तो यहां पे क्या अपने को याद रखना है? यहां पे अपने को याद ये रखना है that these are the pillars. First you target the customers, any of the customers, any category of the customers, like as I gave you example earlier that Audi and Mercedes-Benz, these are those companies जो कि एक class of customers को बस target करती है ना, और फिर उसी हिसाब से जो है they try to go with the product. So targeting the customer, you can say identification of the customer, and then for the need of the customer की need क्या है, and then डेवलप करते हो आप उस प्रोडक्ट को. डेवलप करने के बाद यू गिव सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर, एंड देन ऑल दीज थिंग्स यू डू कीपिंग इन माइंड व्हाट? प्रॉफिट. फॉर श्योर एवरी फर्म ऑपरेट ऑन दिस बेसिस ओनली. सो मार्केटिंग मैनेजमेंट कोई भी पूछेगा तो सिंपल वर्ड्स में क्या बताओगे? मार्केटिंग मैनेजमेंट मीन्स, और यू कैन से मार्केटिंग कॉन्सेप्ट अगर कोई पूछेगा तो, सो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट मीन्स दोज फर्म फॉलोइंग मार्केटिंग कॉन्सेप्ट दे फोकस ऑन द नीड ऑफ द कस्टमर, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द नीड ऑफ द कस्टमर यू ट्राई टू मेक दैट प्रोडक्ट, यू ट्राई टू गिव सेटिस्फैक्शन विद दैट प्रोडक्ट, एंड देन ऑल दिस थिंग्स आर डन फॉर द प्रॉफिट. सो ये तो था हमारा फोर्थ कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट. लास्ट कॉन्सेप्ट वेरी इजी, सोशल कॉन्सेप्ट. सर ये क्या है? सी इट इज नॉट दैट लाइक यू आर ट्राइंग टू सेटिस्फाई द कस्टमर, सो इसलिए जो है यू आर ट्राइंग टू सेल एनी प्रोडक्ट, और यू कैन से यू आर ट्राइंग टू मेक द प्रोडक्ट ऑन एनी कॉस्ट. सर example you are trying to make such product which will satisfy the customer, but ultimately that product is produced in such a manner that it harms the environment. So यहां पे क्या कर रहे हो आप satisfy तो कर रहे हो, but is this good that you are making the product, but उसके वजह से जो है इकोलॉजिकल डिसबैलेंस आ रहा है. फॉर एन एग्जाम्पल देयर वर मेनी फैक्ट्रीज विच वर प्रोड्यूसिंग पेंट, जो वॉल पे पेंट करते हैं, एंड अ वेरी गुड लुक यूज्ड टू कम, बहुत एकदम शाइनी लुक आता था, बट लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड दैट ड्यू टू सच पेंट, और यू कैन से सच क्वालिटी ऑफ पेंट, जो पॉल्यूशन एमिशन होता है बहुत खराब होता है. कस्टमर इज सेटिस्फाइड, बट व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू हियर, आप इकोलॉजिकल बैलेंस खराब कर रहे हो. सो इस चीज को अगर यू कैन कंसिडर लाइक in a such situation, it is not important to satisfy the customer, but it is important, yes, it is important to satisfy the customer, but here you cannot put environment on the line.
You have to make sure that things goes in a balanced manner. So company following social concept, what they do, they try to satisfy the customer, but they also try to maintain the ecological balance. मतलब प्रोडक्ट को बनाएंगे, हम सेल करेंगे और कस्टमर को सेटिस्फाई भी करेंगे, बट विल मेक श्योर दैट द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ द कस्टमर और इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ द एनवायरमेंट इज मेंटेन्ड. And moreover, it is seen that there are many products which is produced, but ultimately it brings harmful effect into the environment. So such product should not be made. So company following social concept, what they do, they satisfy the customer, but they also maintain the ecological balance. So this was the 5 concept of marketing management, or you can say 5 philosophies of marketing management. एक बार जो क्विक रिवीजन करेंगे. So production concept क्या है सर? Production company following production concept, they do mass production. This reduces their cost and ultimately this increases their profit, and they try to sell the product into the market as much as possible. And moreover, since company is producing a lot of product, तो इससे जो है variety of products is available into the market, which ultimately becomes easy for the customer to select the product. So product, ये था हमारा production concept. Product concept क्या है सर? In product concept, the company makes sure that a good quality of product is made. They focus on quality. They focus on the superior quality of the product rather than quantity. हम quantity पे नहीं, हम quality पे focus करते हैं यहाँ पे. So ये तो था हमारा product concept. Next हमारा selling concept है. Aggressive sales promotion is done by hook or crook. You try to sell the product into the market. Your only aim is to sell, whether the customer need or don't need. You don't focus on that. You focus only on selling the product into the market. Marketing concept, what you do here, you try to make sure that first you know what is the need of the customer. कस्टमर की नीड पता चल गई, अब नीड के हिसाब से जो प्रोडक्ट को बनाना शुरू कर दो. हमने सर्टेन पिलर्स देखा, सर्टेन स्टेप्स देखे थे. पहला क्या? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कस्टमर. यू कैन से टारगेट द कस्टमर्स नीड ऑफ द कस्टमर. कस्टमर की नीड क्या है, एंड ऑन दैट बेसिस यू मेक द प्रोडक्ट, यू डेवलप द प्रोडक्ट, यू गिव सेटिस्फैक्शन, एंड ऑल दिस इज डन फॉर प्रॉफिट. तो ये तो हमारा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट. लास्ट सोशल कॉन्सेप्ट मींस सेलिंग द प्रोडक्ट, giving satisfaction is not only important, but maintaining ecological balance is also very important. So production, or you can say marketing or satisfaction to the customer must be given, but apart from that, ecological balance should be maintained. So today we covered this topic, marketing philosophies. एक बार रीड कर लोगे, क्लियर हो जाएगा. नेक्स्ट इसका जब शुरू करूंगा मार्केटिंग मैनेजमेंट, वी आर गोइंग टू कमेंस विद एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स. 4 एलिमेंट्स है. First, we'll start with any of the elements. It is lengthy, it is going to take time. So just make sure that you go through these concepts. Okay. So I hope समझ में आया होगा आपको. Thank you, students.